Hello everyone, welcome to my YouTube channel Code with Vishnu. Today we are going to discuss a very basic concept of Java system.out.println. Generally, we are using this statement in each and every Java application to write something into console or command prompt. After completion of this video, you get to know the background story of system.out.println. And one more thing, is there any alternate statement available of system.out.println to print something? Let's start without wasting any time. So what is system? System is a predefined class present in java.lang package. Next, what is the role of system class? It provides access to system related resources like standard input, standard output, standard error. What is out? Out is the object of printstream class. Out is the object of printstream class. printstream एक क्लास है जो java.io पैकेज के अंदर है. And out present in system class. Out is a static object present in system class. So out एक static object है जो system class के अंदर अवेलेबल है. But out किसका ऑब्जेक्ट है? printstream क्लास का ऑब्जेक्ट है. Don't worry, we'll discuss about this thing. Next, what is println? println एक नॉन स्टैटिक मेथड है. println एक नॉन स्टैटिक मेथड है जो printstream क्लास के अंदर है, प्रेजेंट इन printstream क्लास. And job of println is to write or print into console or command prompt. Means command prompt में print करना इसका काम है. Okay. So what is println? println present in which class? println present in printstream class. What is the role of println? println display the output into command prompt or console. कोई भी फंक्शन को कॉल करने के पहले जावा में, चाहे वो यूजर डिफाइंड हो या चाहे वो प्री डिफाइंड हो, तुमको कुछ इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है. एक तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर, वो पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है या डिफॉल्ट है. नेक्स्ट, उस क्या आर्गुमेंट लेता है वो फंक्शन, वेदर इट इज एक्सेप्टिंग सम आर्गुमेंट, अकॉर्डिंगली यू कैन कॉल इट. तो आर्गुमेंट जानना जरूरी है. एंड और एक इंफॉर्मेशन भी तुमको चाहिए, उसका रिटर्न टाइप. सपोज वो फंक्शन को हम कॉल करेंगे, वो क्या रिटर्न करेगा. एंड फाइनली हमको और एक इंफॉर्मेशन चाहिए, वो स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है. स्टैटिक होगा तो उसको हम क्लास नेम से कॉल करेंगे, नॉन स्टैटिक होगा तो उसको ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे. बट अभी क्वेश्चन है कि पता कैसे चलेगा ये println स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है, एंड उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, उसका आर्गुमेंट क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, पता कैसे चलेगा. पता करने के लिए हम अभी जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट को. वो कमांड प्रॉम्प्ट में हम एक टूल को यूज करेंगे, जो टूल का नाम है JavaP. एंड मैंने JavaP के साथ क्या लिखा हूं, java.io.printstream. क्यों? मैं चाहता हूं कि printstream के बारे में सारे इंफॉर्मेशन जानना है, क्योंकि println एक मेथड है, वो printstream क्लास के अंदर है. जो मैं printstream के बारे में सारे इंफॉर्मेशन चेक करूंगा, मुझे println भी मिल जाएगा. तो ये printstream है. printstream के अंदर सारे इंफॉर्मेशन वो दिखा रहा है, तो उसके अंदर println भी है. तो यहां पर println है. 10 number of println methods available here, and all the println here you can check. These are the println available. So all the println are public, means you can call from any location. Println method return type is void, that means it does not return any value. Next, println accepting some argument. Here no argument, here boolean, here character, here integer, here long integer, like this. So accordingly we can call. Next, there is no static keyword available here, so println is non-static. तो non-static को कैसे कॉल करेंगे? Non-static should be called by object name. Non-static should be called by object name. As println is non-static, it can be called by object name. किसका ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट ऑफ printstream. बिकॉज println किसके अंदर है? printstream के अंदर है, तो ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा. तो ऑब्जेक्ट किसका होगा? printstream का ऑब्जेक्ट होगा. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि printstream का ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना पड़ेगा या ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. हाँ,
यहां पर प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट का नाम है आउट। सो आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच क्लास? प्रिंट स्ट्रीम क्लास। तो आउट किसके अंदर है? आउट प्रेजेंट इन सिस्टम क्लास। आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास बट प्रेजेंट इन सिस्टम क्लास, एंड वो आउट स्टैटिक ऑब्जेक्ट है। बट पता कैसे चलेगा आउट स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, आउट पब्लिक है या नॉट पब्लिक है? ये सब जानने के लिए हमको फिर से जाना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट को, और यहां पर हमको लिखना पड़ेगा जावा पी जावा डॉट lang डॉट सिस्टम। ये कमांड हमको क्या दिखाएगा? सिस्टम का सारे इंफॉर्मेशन। हमको एक्चुअली सर्च करना है किसको? आउट को सर्च करना है। जब आउट को सर्च करेंगे, आउट किसके अंदर है? सिस्टम के अंदर है। तो मैंने सिस्टम को ट्रेस कर रहा हूं, तो सिस्टम के अंदर सारे इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन मिला जिसका नाम क्या है? आउट है। तुम यहां पर चेक कर सकती हो आउट कौन सा टाइप का है? पब्लिक टाइप एंड स्टैटिक है। प्रिंट स्ट्रीम आउट मींस आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच क्लास? प्रिंट स्ट्रीम क्लास, एंड आउट प्रेजेंट इन व्हिच क्लास? सिस्टम क्लास। तो सिस्टम क्लास के अंदर है एंड प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, एंड वो पब्लिक भी है एंड वो स्टैटिक भी है। स्टैटिक होगा तो कैसे कॉल करेंगे? क्लास नेम से कॉल करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास? सिस्टम क्लास। सिस्टम क्लास के अंदर है तो क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट। एंड आउट किसका ऑब्जेक्ट है? प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। तो प्रिंटलन मेंबर ऑफ प्रिंट स्ट्रीम, तो आउट किसको कॉल करेगा? प्रिंटलन को कॉल करेगा। कैसे? आउट डॉट प्रिंटलन। मैं वही चीज अभी बोलने वाला हूं कि आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच क्लास? प्रिंट स्ट्रीम क्लास। आउट प्रेजेंट इन व्हिच क्लास? सिस्टम क्लास, एंड वो स्टैटिक है। सिस्टम क्लास के अंदर है एंड स्टैटिक भी है, तो कैसे कॉल करेंगे? सिस्टम डॉट आउट। एंड आउट स्टैटिक है, किसको कॉल करेगा? प्रिंटलन को। कैसे कॉल करेगा? आउट डॉट प्रिंटलन, क्योंकि प्रिंटलन नॉन स्टैटिक है, उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आउट डॉट प्रिंटलन। आउट को टच करने के लिए सिस्टम क्लास नेम सफिशिएंट है बिकॉज वो स्टैटिक है, तो सिस्टम डॉट आउट एंड आउट डॉट प्रिंटलन। तो यू कैन राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। Okay, you got a brief idea about system.out.println. In a different way, I am trying to represent this particular concept also. I have trying to design a mapping implementation of system.out.println. मतलब system.out.println जैसे ही काम कर रहा है, मैं वैसे ही एक implementation, एक यूजर डिफाइंड implementation क्रिएट किया हूँ, तुम उसको चेक कर पाओगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैपिंग implementation क्या है। यहाँ पर मैं क्लास लिखा हूँ क्लास टेस्ट। वो क्लास टेस्ट के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम शो है। जस्ट लाइक प्रिंटलन एक मेथड है, उसका नाम है शो। शो एक स्टैटिक या नॉन स्टैटिक मेथड है? नॉन स्टैटिक है, कोई स्टैटिक कीवर्ड अवेलेबल नहीं है, इसके साथ कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, तो नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक को कैसे कॉल करेंगे? नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए? टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, बिकॉज वो टेस्ट क्लास के अंदर है। ओके, तो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने डिजाइन किया हूं। किसके अंदर डिजाइन किया हूं? डेमो क्लास के अंदर डिजाइन किया हूं। तो तुम जान सकती हो कि obj is the object of which class? Test class, because test obj is the object of test class, but present in which class? Demo class. and वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? स्टैटिक है। पब्लिक है नॉट पब्लिक है? पब्लिक है। तो ऑब्जेक्ट किसका है? टेस्ट का है। किसके अंदर है? डेमो के अंदर। तो कैसे कॉल करेंगे? डेमो डॉट ओबीजे, बिकॉज वो ओबीजे क्या है? स्टैटिक है। स्टैटिक होगा तो कैसे कॉल करेंगे? क्लास नेम से, तो डेमो डॉट ओबीजे। ओबीजे एक्चुअली किसका ऑब्जेक्ट है? टेस्ट का है, तो टेस्ट क्लास का सारे मेंबर को ओबीजे कॉल कर पाएगा। तो मेंबर कौन है? शो है, तो कैसे कॉल करेगा? ओबीजे डॉट शो। तो डेमो डॉट ओबीजे एंड ओबीजे डॉट शो, वी कैन राइट डेमो डॉट ओबीजे डॉट शो जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। देखो यहां पर मैं मेंशन किया हूं वही डेमो डॉट ओबीजे, बिकॉज ओबीजे को कॉल करने के लिए क्या चाहिए? क्लास नेम चाहिए। एंड ओबीजे किसको कॉल करेगा? शो को, तो ओबीजे डॉट शो। सो डेमो डॉट ओबीजे प्लस ओबीजे डॉट शो, वी कैन राइट डेमो डॉट ओबीजे डॉट शो। ओके, इन द सेम वे देखो यहां पर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जैसे यहां पर टेस्ट क्लास है, वहां पर क्या है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास। यहां पर शो मेथड है, वहां पर कौन सा मेथड है? प्रिंटलन मेथड। यहां पर मैंने कुछ लॉजिक लिखा हूं हेलो प्रिंट करने के लिए, यहां पर लॉजिक टू प्रिंट इनटू कमांड प्रॉम्प्ट। सेम स्टोरी। नेक्स्ट यहां पर क्या कौन सा क्लास है? सिस्टम क्लास। सिस्टम क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है आउट। आउट किसका ऑब्जेक्ट है? प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। एंड वो स्टैटिक है नॉन स्टैटिक? स्टैटिक है। वो पब्लिक? यस पब्लिक है। तो सिस्टम क्लास के अंदर का आउट है, तो कैसे कॉल करेंगे? सिस्टम डॉट आउट, बिकॉज आउट इज स्टैटिक।
आउट स्टैटिक है, आउट को टच करने के लिए क्या चाहिए, क्लास नेम सिस्टम डॉट आउट। एंड आउट किसका ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है। तो प्रिंट स्ट्रीम के अंदर जो फंक्शन है लाइक प्रिंटलन, आउट उसको कॉल करेगा तो क्या लिखेंगे, आउट डॉट प्रिंटलन। तो सिस्टम डॉट आउट प्लस आउट डॉट प्रिंटलन, वी कैन राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सो वी आर राइटिंग सिस्टम डॉट आउट dot println system dot out dot println. So this is the background story of system dot out dot println. सपोज अभी भी तुम्हारा कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बोलो, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.